I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. How are you people? We are meeting after the Holi festival. Had you enjoyed, you people? Can you hear me? Am I visible to you all people? Can you hear me? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. कैसी रही आप लोगों की होली? तो लास्ट 2 डेज के वैकेशंस में आप लोगों ने क्या जावा का प्रैक्टिस किया? Is there any problem? You can share with me if you have any problem or any queries. Otherwise, we shall move on to the next topic, which I had said about exceptions handling. And today, what I decided that all those files I will share on WhatsApp. You can download and you can see, you can practice. Now, shall we start exceptions handling, or you have any queries regarding previous topics? Please let me know. Akshita, Excuse me, sir. do you people have any problem till the topic what we had discussed? Now, okay, if you have, you can share, you can ask later on. Today we shall start exceptions handling. Now, what is exception? Let's understand first. In nutshell, I can tell you that handling of errors using object-oriented mechanism. Handling of error using object-oriented mechanism. There are a lot of unavoidable situations which must be tackled in the program very carefully and minutely, so that our program will have normal executions flow. Okay, now let me share this slide. Let me just a moment. Can you see the slide? Please respond. Yes, sir. Hello, guys. Yes, sir. Okay, it's visible to you all. Very nice. So, after this class, today's slide as well as the piece of code, as well as the previous days, all those codes and slide I shall share on WhatsApp. You can download, you can see that. What is exceptions handling? If exceptions means error, see this straightforward, एक simple language में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो this is an error basically, and it's a very common sense matter that if at all any error occurs, it will disturb the normal flow of the program. That is why it is desirable that they must be handled. Okay? So exceptions handling is a mechanism which handles the runtime error. By error, we can say there is a compilation error. That is because of syntactical error. That is not the case of our topic. Our topic is when our program executes, then because of certain logical error or maybe certain technical errors,
some avoidable situations may occur during executions of the program. And that is the point what we are supposed to deal today. Let's move on to the next slide. These are the, not all, these are the most important built-in exceptions in Java language. Arithmetic exceptions, array index out of bound exceptions, class not found exceptions, etc. Look at this. The first thing is arithmetic exceptions. Let's say when you divide a number by another number, do you know if you divide any number by 0, what happens? What kind of result do you expect when you divide any number by 0? So it's an error. What kind of error? Please let me know. Mathematically, we know that when any number you are dividing by 0, the result is infinitive. Of course, infinitive is nothing defined as such, but to that we call it as an error. So that kind of error is said to be as divide error. In C language, if you develop any program and eventually that number gets divided by 0, that is denominator's value is 0, and division by 0 is exactly not allowed in any programming language. It will create runtime error. And that is a kind of exception. So let us consider when any kind of division takes place into your program, you have to ensure that if that situation occurs, then that should have been handled by your program. If suppose you do not handle, what happens? That we will discuss, or we will try to see by certain example. That will be better to understand. Array index out of bound exceptions. Look, when you create array of any fixed size in Java language, you need not worry. You just go on storing item, go on pumping item into the array, and you be sure never that situation will come when the size, because of size, you might be in trouble. If at all your array is full and still you are trying to push certain item, that Java language is very intelligent. It knows that array is full, so that item cannot be stored. In that situation, array out of bound exception is raised. Exactly, this is not the case of C or C++ language like that. So in Java, we say auto bound checking for array. Auto bound checking is performed. This is what is the situations. Exactly, class not found exceptions, file not found exceptions, IO exceptions, and so on. So these are not all. These are just few exceptions examples what I have mentioned. Okay, let's move on to the next slide. Now from here, it's very important to learn. As all we know, who is the sole proprietor, or we can say owner of Java language? That is Oracle. Okay, so as per that, there are three types of exceptions: checked exceptions, unchecked exceptions, and error. We will, in the next coming slide, we will come to know about checked exceptions and unchecked exceptions. See, when a particular line of when any statement which might create error at runtime, listen my words very carefully, and you have to just give little attention at this moment. When a statement which executes, of course, there may be many reasons, it might create an error at runtime. But that is not
detected at compilation time. There are two categories. Error, leave it. We will discuss error later on. Broadly, checked and unchecked. Checked exceptions category के जो errors होंगे, that compiler will come to know that error has not been handled within the program. So compiler will generate error at compilation time. So there are two categories of errors. One which compiler can decide at compilation time. Another which compiler doesn't. Now, if compiler may know at compilation time that error is said to be as checked exceptions categories error and unchecked exceptions. That cannot be judged at compilation time. Compiler, that means compiler will not come to know that its handling is must. That kind of error is said to be as unchecked exception. And of course, error, there are another type of exceptions that is called error. Error also comes under category of unchecked exceptions, like null pointer exceptions error. Null pointer exceptions error means if any object's memory, if any object which hasn't been created, and we are trying to refer that into our program. In Java, it is quite safe. If that situation arises during executions of program, it will generate null pointer exceptions error. Okay, checked exceptions and unchecked exceptions. Now, we will draw a class hierarchical diagram representing the exceptions structure. Look at this. It's very important to understand this concept. Can you see, guys? This is called class hierarchical diagram. On the topmost class is object, which is inherited into throwable class, and throwable class has got two subclasses, exceptions class and error class. And again, from exceptions class, there are many derived classes. Complete, the diagram which we are seeing is that it is representing the inheritance structure. Topmost class is object. Do you know what is object? ये बहुत interesting है. Let me know. Let me know that how many of you have knowledge about the object class? Do you know? Now I'll tell you. In Java class hierarchy, the topmost class is object. There is a class in Java library whose name is object, capital O-B-J-E-C-T. Capital O-B-J-E-C-T. Object के नाम से एक already Java language में class बना हुआ है. And I'll tell you one thing, where the beauty of Java language is, always the topmost object is the parent class of every class. आप पिछले क्लास तक, पिछले दिनों तक, लास्ट क्लासेस तक जो भी हम क्लास क्रिएट किए थे, जब हमने इनहेरिटेंस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया था, मैं तब की बात कर रहा हूं. Any class you create, it will have parent class, and that class is object. Remember, without doing any inheritance, मतलब in nutshell you can say that Java language में कोई भी प्रोग्राम without inheritance बनती ही नहीं है. Any class you create, एक हिंदी में है ना, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारों. मतलब क्या, अगर आपका कोई नहीं है तो आपका जो है खुदा है. In the same manner, if any object class we create in Java language, और हमने उसका कोई parent class नहीं रखा है, हमने कोई उसका inheritance नहीं किया है, then in that situations automatically object will become parent class. That means entire attributes and members of object class will also become member of the class what we had created. मतलब क्या,
विदाउट इनहेरिटेंस तो यहाँ कोई काम ही नहीं होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जावा लैंग्वेज विच वी शुड अंडरस्टैंड. अभी तक हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी, बट एज वी प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वी आर trying to study all those core Java concepts very technically in a very precise manner. So now, have you got it? Object is the topmost class. समझ में बात आई? Please respond. Yes, sir. Object is Yes, the sir. topmost class. क्या ये मालूम था? क्या आप लोग जानते थे? No, sir. ये बात समझ में आई? मैं जो कह रहा हूं, कोई भी क्लास आप जावा में क्रिएट करोगे, ऑटोमेटिकली उसका पेरेंट क्लास कौन हो जाएगा? Object. ऑब्जेक्ट. तो अब आप जाके, बुक्स भी आपके पास होंगे, नहीं तो फिर कमिंग सक्सेसिव स्लाइड्स में जो इंपॉर्टेंट 4-5 जो क्लासेस होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड एक बात जान लो, ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑटोमेटिकली हर एक क्लास का पेरेंट क्लास होगा. अब यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से देखिए. ऑब्जेक्ट का चाइल्ड हो गया थ्रोएबल, एंड एक्सेप्शन इज द चाइल्ड ऑफ थ्रोएबल. नाउ एक्सेप्शंस के चाइल्ड कौन कौन है? IO exceptions, SQL exceptions, runtime exceptions and many more. Got it? ये 3 तो मैं सैंपल के तौर पे लिखा हूं, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे. तो ये जो एक्सेप्शंस क्लास के जो चाइल्ड क्लासेस हैं, they are of the category called checked exception. Look at this, checked exception. And एक्सेप्शंस क्लास के चाइल्ड हो गए रन टाइम एक्सेप्शन, एंड रन टाइम एक्सेप्शंस के फर्दर जो चाइल्ड क्लासेस हैं, दीज क्लासेस आर ऑफ द कैटेगरी कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शंस. इसका मतलब नल पॉइंटेड एक्सेप्शन जो हो गया, दैट इज ऑफ द कैटेगरी कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शंस. अरिथमेटिक एक्सेप्शंस इज ऑफ द कैटेगरी कॉल्ड unchecked exceptions, but IO exception is the category of checked exception. तो अगर आपके प्रोग्राम में आप ऐसा पीस ऑफ कोड यूज करते हैं जो IO exception जनरेट करता है, that comes under the category of checked exceptions. And checked exceptions के जो errors होंगे, exceptions होंगे, that must be handled within the Java program. तो आज के बाद से whichever code I shall write, हम उसमें एक्सेप्शंस हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे. इज इट ओके? नाउ थ्रोएबल क्लास के अदर चाइल्ड हो गए एरर, एंड एरर्स के भी हैं सब चाइल्ड्स जो है, दैट इज डिराइव्ड क्लासेस, स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी एरर्स एंड सो ऑन. ठीक है ना? दोज एरर्स टेक्स प्लेस एट runtime. Let's move. Now to handle exceptions. In order to perform exceptions handling, there are 5 keywords in Java language. Remember, try, catch, throw, throws, and finally. Try, catch, throw, throws, and finally. Try is the actual block of statement where actual code we write. मतलब एक्चुअल काम करने का जो कोड होगा वो ट्राई के अंदर हम लिखेंगे. आई बात समझ में? एंड जब हम काम करते हैं तो उसी में तो संभावना होगी ना कि देयर माइट बी सर्टेन एरर्स व्हिच गेट्स जनरेटेड एट रन टाइम. ओके. Now, try block must be followed by either a catch or finally block. मतलब क्या हो गया? Try block अकेला यूज नहीं किया जा सकता है. Try के बाद catch block आएगी या finally आएगा, या catch और finally दोनों हो सकता है. So,
try must be followed by either a catch or finally or both. Got it? This is the syntax. This is the syntax of using exceptions handling in Java language. Try block followed by catch block or finally block. Either catch or finally. One combination. Another combinations, try followed by only catch. Another combinations, try followed by only finally. Another combination, try followed by one catch, two catch, that is many catches. Another combinations, try followed by catch and finally both. So try block, catch block, finally block. Try block, actual task performed. Catch block, in case of error which occurs inside the due to the statement present in the try block. To handle those situations, we have catch block. So try block, working code, catch block, error handling code, and finally block, that is a common block which executes whether error occurs or not. Matlab, try successfully works, then directly finally. So we will come to know. As far as throw and throws is concerned, throw का काम होता है to raise the exceptions, and the use of throws is just by using throws, exceptions are declared. These are the definition of all these five keywords. Later on, we will come to we will see the syntax, and by example, we will try to deal that topic. Let's move. Look, now example of exceptions handling. Look at the syntax. We have try block. Look, try का syntax देख लो. Try followed by open brace and close brace. Try block हो गया. तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक्चुअल काम कर रहे हैं. फ्लो को समझने की कोशिश करो. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. ट्राई फॉलोड बाय कैच ब्लॉक. लुक, ट्राई जैसा कि मैंने आपको कहा था, दिस इज द ब्लॉक ऑफ ए स्टेटमेंट वेयर वी परफॉर्म द एक्चुअल टास्क. कैच ब्लॉक. इफ एनी एरर अकर्स इनसाइड ट्राई, पे 3 का यूज देख रहे हो. ट्राई के अंदर एक्चुअल टास्क फॉलोड बाय कैच. अब यहाँ पे कैच का मतलब पकड़ना है. जब ट्राई के अंदर एरर होगा, दैट एरर इज रेज्ड एंड दैट एरर इज कॉट बाय कैच ब्लॉक. एंड रिमेंबर, अगर कुछ भी याद ना हो, एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट क्लास, दैट इज ऑब्जेक्ट. जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं एक सेंटेंस, आग लग गई. हाउ मैन, हाउ इट गॉट फायर्ड? ड्यू टू maybe gas leakage, one situation. Secondly, maybe due to electrical short circuit. Now you people are technical students. क्या दोनों तरह से आग अगर लगती है तो दोनों सिचुएशन को टैकल करने की क्या एक ही तरीके होंगे? If fire due to gas leakage, another if fire due to electrical short circuits. Exactly, answer is no. दोनों को हैंडल करने का तरीका अलग अलग होगा. तो अगर हम ये क्लियरली मैसेज देंगे कि ये आग लग गई है बिकॉज ऑफ गैस लीकेज, देन ओनली सुनने वाले जो पर्सन होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे. सो
the type of error is very important to be flagged out very carefully, very minutely. And जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के स्ट्रक्चर को, क्लास हायरार्किकल डायग्राम ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग देखे थे ना. लेट मी रिपीट, गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, लुक एट दिस. जो भी चेक्ड एक्सेप्शन हो या अनचेक्ड एक्सेप्शन हो, कोई भी एक्सेप्शन हो, पेरेंट क्लास कौन सा एक्सेप्शन का? एक्सेप्शन. किसी भी एरर का, मे बी इट इज चेक्ड और अनचेक्ड, तो इसके पेरेंट क्लास कौन है? एक्सेप्शन. एरर इज टोटली डिफरेंट. एरर को अभी कंसीडर ही नहीं करना है. तो हमें पर्टिकुलर एरर्स के नाम अगर याद ना हो, पॉलीमॉर्फिज्म का याद करना. तो प्रीवियस क्लास जो हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस किया था, एनी ऑफ द चाइल्ड ऑब्जेक्ट का जब क्रिएशंस होता है तो कोई भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट स्टोर कहां पे होता है? ऑलवेज पेरेंट इंस्टेंस वेरिएबल के पास. तो इस पूरे में पेरेंट कौन सा हो गया? एक्सेप्शन. सो एनी पर्टिकुलर एरर आपको रिसीव करना हो लेकिन आप नाम नहीं जानते हैं, तो आराम से वहां पे एक्सेप्शंस का हम यूज कर सकते हैं. और इसी बातों को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस लिखा है. एंड दिस इज ए इंस्टेंस वेरिएबल which will receive that exceptions object. Now, E will receive it is displaying the object E. Look at this. This line is also very interesting. When we try to print any object, automatically, what happens? Do you know? Automatically, there is a function. Please note down. There is a function named as toString. Automatically, when you try to print any object, E is expanded as E.toString. मतलब क्या? toString method of exceptions class is called automatically. And this is also very fantastic. toString actually is the method of object class. And already I had said into the previous slide, dekh lo, object is the topmost class. So the beauty of Java language or Java language के system को अगर आप समझोगे, then every class should override a function named as toString. And toString functions का काम होना चाहिए object representations of, sorry, string representation of objects. मतलब क्या हो गया? Object के जो attributes हैं, as per our requirement, हम वो सारे एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करके कंबाइन करके एक स्ट्रिंग में फॉर्म करके एंड toString मेथड के द्वारा हम उसको रिटर्न कर देते हैं. सो इट इज जावाज सिंटेक्स, जावाज स्ट्रक्चर कि अगर आपके क्लास, अगर ये तो यहाँ पे एक्सेप्शंस क्लास है, बट लेटर ऑन may not be today, in next day we can see to create our own exceptions, that is called custom exceptions. Then those things will be more clear. तो यहाँ पे system.out.println में जो e पास कर रहे हो, what happens? Automatically this line gets converted, expanded into e.toString function call. Is that clear? यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं e की जगह पे e.toString. मैंने वैसा नहीं किया है, automatically it happens so. So this is the structure of exceptions handling. This is the syntax. How do you use it? Now we will move on to Java program. Now is it clear? Any queries? Any question? Please let me know. बताइए, respond करिए quickly. इस point पे कोई भी doubt?
No, sir. ये आपको समझ में आ गई? ई एक्सपैंड होके ई डॉट टू स्ट्रिंग होगा, एंड टू स्ट्रिंग इज द मेथड ऑफ विच क्लास? Object class, and the structure is every class what is created in Java language should override two string functions. What is the meaning of overriding? What is functions overriding? Can anyone respond me? Can anyone respond me? What is functions overriding? See, interactions का advantage ये होता है, if someone knows, let us share, उससे का एडवांटेज है कि जिस फ्रेंड्स को थोड़ी कंफ्यूजन होगी, मे बी मिस हो रहा होगा, मे बी नहीं जानते होंगे, उन्हें भी रिकॉल हो जाएगा, उन्हें भी नॉलेज हो जाएगी. व्हाट इज फंक्शंस ओवरराइडिंग? If the base class, the parent class function is redefined in the child class, that concept is called functions overriding. And already I said, toString method is originally defined inside parent class. So, and inside object class, and object class is always the topmost class, always the parent class of our class. So naturally, every time कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ प्रिंट करना चाहेंगे, इट विल कॉल टू स्ट्रिंग फंक्शंस. और अगर एक्सेप्शंस क्लास के अंदर, या मैंने जो क्लास बनाया उसके अंदर अगर हमने टू स्ट्रिंग फंक्शंस को ओवरराइड नहीं किया तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो टू स्ट्रिंग फंक्शंस है दैट विल बी इवोक्ड. और ऑफ कोर्स वो एम्प्टी होगा या जो भी होगा वो हमारे अकॉर्डिंगली काम तो करेगा नहीं. इसलिए इट इज डिजायरेबल दैट if our structure is good, we should override two string functions in our class. And the task of two string method should be create a string representations of our object and return by the two string function as a string. Okay. Now, shall we go to the Java code? Let's see. Now we are moving to Java code. Look, a very simple code. यहाँ पे हमने ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया है. Just a minute. With exceptions, let me. इस कोड को समझने की कोशिश करिए. वेरी सिंपल. हम लोगों ने कुछ नहीं, सिंपल तरीके से दो नंबर को डिवाइड किया है. दोनों नंबर को कीवर्ड से इनपुट किया गया है एंड दैट हैज बीन डिवाइडेड. यहाँ पे मैंने एक सिंपल आउटपुट लिखा है. अगर मैंने फर्स्ट नंबर की वैल्यू 12 दिया एंड सेकेंड नंबर की वैल्यू मैंने 0 इनपुट किया, you can see the message, kind of message what I'm getting. ठीक है? Can you see that? Now let me compile and run. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हैं. Is it okay? Now we are performing division operations here. Now let us compile this code, piece of code. ये हमने कमेंट कर दिया, नहीं तो ये कंपाइल करेंगे तो एरर क्रिएट करेगा. Now there is no error. Now let's see. We are about to execute our program. And जो हम लोग अर्थमेटिक एक्सेप्शंस की बात हम लोगों ने की थी, मान लो फर्स्ट नंबर हमने इनपुट किया 10. आर यू गेटिंग द गाइस? हमने सेकेंड नंबर इनपुट किया मान लो 5. इसमें तो कोई इशू नहीं है,
we will get answer. Can you see that? Once again, let's execute. Let's say the first number is 12 and second number is 0. What happens here? 12 will be divided by 0. What line we got? Just try to read this. Exception in thread main. Java dot lang dot arithmetic exception. दिख रहा है? जावा तो जब एक्सेप्शंस होंगे, एक्सेप्शंस जब एक्सेप्शंस जनरेट होंगे तो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम गेट्स इंटरप्टेड. लुक एट दिस. ये लाइन आपका एरर जनरेट कर रहा है. आर वी गेटिंग दिस टू आंसर्स, प्रोग्राम ओवर और ये सी की वैल्यू? आंसर है नो, वी आर नॉट गेटिंग सो. तो क्या हुआ? हमने तो इनपुट किया, लेकिन क्या ये दो लाइन आउटपुट हो पाया? आंसर इज नो. ट्राई टू सी वंस अगेन. देयर इज नो इश्यूज. लुक व्हाट हैपेंड. जैसे ही एरर जनरेट हुआ, द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम गेट्स इंटरप्टेड एंड द लास्ट टू लाइन जो था आउटपुट की वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा है. तो नॉर्मल फ्लो क्या था? फ्रॉम इनपुट से लेके लास्ट जो लाइन थी प्रिंट की वहां तक एग्जीक्यूट होना. दैट वाज द नॉर्मल फ्लो व्हिच वाज डिजायरेबल. अगर ये सेकेंड नंबर 0 नहीं होता तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. अगर सेकेंड नंबर 0 नहीं होता तो देयर इज नो प्रॉब्लम. लुक एट दिस वेरी क्लीनली. वी आर गेटिंग आंसर 3 एंड प्रोग्राम ओवर. प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. ये तो हमारा सिस्टम का मैसेज है, ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. द प्रोग्राम ओवर मैसेज तक ही हमारा है. लेट्स एग्जीक्यूट वंस अगेन एंड ट्राई टू गिव 0. बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग गाइस व्हाट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस? तो इन चीजों को टैकल करना होगा हमारे प्रोग्राम में. इट्स नॉट आवर. हम लोग अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो ये चाइल्डिश नहीं होना चाहिए कि जस्ट राइट डाउन द फ्यू पीस ऑफ कोड एंड गो अहेड. तब तो फिर हम आगे के लेवल पे हमें परेशानी होगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू क्लियर? या ये क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या हो रही है? एक्सेप्शंस Yes. क्या है? सबसे पहले हैंडलिंग अभी नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट एक्सेप्शंस को हम लोग देख रहे हैं. What exceptions gets generated, how exceptions get generated, what is exceptions. अब हम लोग उसको हैंडल करेंगे, लेकिन पहले ये चीजें क्लियर हो जाए फिर. बताइए, let me know. क्या is someone is having doubt? कोई भी learners, कोई भी viewer, any viewer, anyone? ये दिख पा रहा होगा स्क्रीन के ऊपर. ओके, एनी डाउट? समझ में बात आ गई? एक्सेप्शंस होता क्या है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन? ओके, हर्षित टेल मी. या हर्षित बोलिए. एक्सेप्शंस होता क्या है? द रन टाइम एरर विच गेट जनरेटेड, और अभी हमको उसको हैंडल करना है सो दैट आवर नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज मेंटेन्ड. आगे जितने भी सिचुएशंस आएंगे, दैट इज वेरी, इट बिकम्स ए काइंड ऑफ कंपल्सरी कॉन्सेप्ट. आपको उसको हैंडल करना होगा. आर यू गेटिंग गाइस?
हेलो फोक्स, Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? ये समझ में आ गई ना कि एक्सेप्शंस होता क्या है? नाउ अब हम लोग उसको हैंडल करेंगे। ये एरर जो दिख रहा है इसी एरर्स को हैंडल करते हैं। ओके, फॉर दैट हम डिफरेंट पीस ऑफ कोड ले रहे हैं। ओके, नाउ सी लुक एट दिस कोड। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ट्राई के अंदर चीजों को लिख दिया। लुक एट दिस, ट्राई के अंदर चीजों को लिख दिया। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं एक चीज, ये प्रोग्राम ओवर जो यहाँ दिख रहा है, अगर इस बीच में एरर्स होंगे, अब ये एक्सेप्शंस को हैंडल किया गया है। प्रोग्रामर, दैट इज माई सेल्फ, वी नो वेल इन एडवांस दैट इनसाइड दीज स्टेटमेंट्स एरर हो सकते हैं। बहुत सारे अभी भी चीजों को हैंडल हमें करना है। अभी यहाँ पे देखते हैं व्हाट एरर। ये तो सीधा सीधा यहाँ पे एरर डिस्प्ले है। एरर हमारा लाइन है और हमने ई को यहाँ पे लिखा है। ई को लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया होगा, ई डॉट टू string, ये ऑटोमेटिकली दिस लाइन गेट्स एक्सपैंडेड। ई गेट्स एक्सपैंडेड इनटू, हमने कमेंट में लिख दिया मैंने, ई is expanded into e dot to a string. ओके, अब यहाँ पे ओनली हम ई लिख रहे हैं। ई डॉट टू ए स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, लेकिन ये कंपाइलर ही मेरे लिए कर रही, तो मैं क्यों लिखूं, ना लिखूंगा। तो ट्राई के अंदर एक्चुअल काम ट्राई ब्लॉक फॉलोड बाय कैच ब्लॉक। चलो इसको भी ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, यहां से हो गया कैच ब्लॉक। ठीक है, इज दैट ओके? अब देखो यहाँ पे, अब बिकॉज वी हैव हैंडल्ड द एक्सेप्शंस, हमारा प्रोग्राम का फ्लो यहां से लेके यहां तक होगा। एरर हो तब भी एरर मैसेज आएंगे। अगर इस लाइन पे एरर हो गया, जिस लाइन पे भी एरर हो जाए, मान लो इस लाइन पे ही एरर हो गया, व्हाट दिस लाइन इज डूइंग, लुक एट दिस, मैंने ये एक लाइन को हाईलाइट किया है। विल someone tell me what this line is doing? This line accepts the keyboard inputted data and converts into int, implicit data type called int, and returns stored into A. Similarly, another input that into, and this line does the computing, and if at all first line, second line, third line कोई एरर ना होगा, then fourth line, and then अगर यहाँ कहीं भी एरर नहीं है, then catch will not have any effect. Directly program over message will come. Directly program over message will come. Let me do the compilation and execute. Look, now I am giving normal data. Program over तक आ रही है. Now let me re-enter. Now let me give 0. नहीं डिस्टर्ब क्या आता है? अब इस चीज को जरा गौर से देखो। I inputted 0. हाँ, अभी तुरंत आएगा। Hello. Now I inputted 0. What happened? क्या हुआ? ये एरर मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये एरर मैसेज कहां से आया? और एक बात जान लो, डिवीजन के लाइन पे एरर हुआ। दैट डिवीजन लाइन में क्या हुआ? डिवाइडेड बाय 0 हुआ।
So during executions of the program, arithmetic exceptions object got generated and raised, and that object is raised object is caught by the catch. तो डिवीजन के बाद जो आउटपुट वाली लाइन है यहाँ पे कहीं नहीं दिख रही है, ये मैसेज कहां से आ रहा है, कैच के अंदर से आ रहा है। और उसके बाद ये प्रोग्राम ओवर कैच के नीचे लिखा हुआ था ना फाइनली के अंदर, वो मैसेज आ रही है ना, देख रहे हो ना कैच। यहाँ पे हम लोग कोई फाइनली नहीं यूज किया हमने। फाइनली इज बेसिकली ऑप्शनल ब्लॉक तब जब ये कैच के बाद लिखा जाता है। अगर फाइनली भी लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, FINALLY फाइनली ब्लॉक, इस तरह से। ओके, फाइनली हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ट्राई ब्लॉक फॉलोड बाय कैच ब्लॉक फॉलोड बाय फाइनली। फाइनली ऑप्शनल होता है तब जब व्हेन इज कैच, व्हेन देयर इज अ कैच वी कैन राइट द कोड इनसाइड फाइन, जो भी फाइनली के अंदर दिख रहा है, विदाउट फाइनली। बट इफ वी राइट इट्स गुड अप्रोच। तो फाइनली की बात जो है एरर हो या ना हो दोनों स्थिति में दिखेंगे। लुक एट दिस, एरर हो गई कैच के अंदर, प्रोग्राम ओवर मैसेज फिर भी दिख रहा है। अगर एरर ना हो तब भी हमारा फाइनली दिख रहा है। चीजें समझ में आ रही होगी। लेट्स री एग्जीक्यूट। जो मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, अब यहाँ पे एरर हो गया तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आपको कोड को भी दिखा रहा हूं साथ साथ। लुक एट दिस, लुक फर्स्ट इनपुट ए में आ गई 0, सेकेंड इनपुट सॉरी फर्स्ट इनपुट 12 कहाँ आ गया, ए में। सेकेंड इनपुट 0, वो 0 कहाँ आ गई, where 0 has come into B. Now division text इस लाइन पे हमारा एरर जनरेट हुआ, वहां से हम ट्राई के अंदर की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। सो इट विल लीव ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ ट्राई ब्लॉक। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। अगर वो एग्जीक्यूट होना कंपलसरी है तो फिर उसकी प्लेसमेंट ट्राई के अंदर ठीक नहीं होगा, बिकॉज जिस किसी भी लाइन पे एरर आएंगे वहां से एग्जीक्यूशंस जंप करके कैच के अंदर जाएगा, और कैच के अंदर जो सुटेबल मैसेज है वो दिख गया। या अगर इसके अंदर जो अदर कोड आपने लिखा है दैट कोड विल एग्जीक्यूट, एंड फाइनली द ऑप्शनल ब्लॉक इज व्हाट इज कॉल्ड फाइनली, दैट विल ट्राई कैच फाइनली। Any doubt? If you have any doubt, any queries, please let me know. चीजें क्लियर है, फिर बहुत अच्छी बात है। Sir, हाँ बोलिए। sir, so can we conclude that if there are multiple errors inside the try block, only the first of those error is going to be displayed in the catch? Yes, let me re-execute this program. What is your name? Sir, Shlok. Slow. Okay. Just look at this. And उसके accordingly फिर हम modifications करेंगे. Let me re-execute and look at this carefully. First number was the first data was supposed to be entered as integer number. मान लो by mistake हमने वहां पे कोई numeric value टाइप कर दिया। हमें तो टाइप करना था नंबर, लेकिन गलती से ए दब गई और मैंने इंटर दबा दिया। आप देखो क्या हो गया। Yes, got that, sir. Thank you. Yes, sir. एरर, अब यहाँ पे गौर से देखने की क्या चीज है, सो देखिए इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ रहा है, और ये पूरे मैसेज को जरा पढ़ो।
java.util.input_mismatch_exceptions। लास्ट में जो नाम होगा, लास्ट में जो नेम होगा, दैट विल बी द क्लास, दैट विल बी द टाइप ऑफ द एरर, और वो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो ये है क्लास, वो कहां पे डिफाइंड है? java.util के अंदर, java.util.input mismatch error। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि while एक ट्राई के बाद मल्टीपल कैचेस आते हैं, एक एरर आपने देख लिया ना, इनपुट मिसमैच। देखो यहाँ पे हम पूरे लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पूरे लाइन को सिलेक्ट किए एंड इंटर दबाए, कॉपी हो गया। नाउ अब देखो यहाँ पे, वाई वन ट्राई फॉलोड बाय मेनी कैच। जितने भी टाइप के एक्चुअली ट्राई में एरर आएंगे, एक्चुअल कोड ऐसा होना चाहिए था। अब इसके अंदर ऐसा हमें लिखना चाहिए था। देखो यहाँ पे इनपुट मिसमैच एरर हो, एक्सेप्शंस टाइप का ये ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा E2 और इस ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा E1। और तो इस ट्राई को गौर से देखो, कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं। एक इनपुट मिसमैच एरर, तो ये हमारा क्लास अननोन होगा, ऊपर में हमें इंपोर्ट में लिखना होगा, इंपोर्ट में लिखना होगा। अब अगर हम एक ही कैच रख देंगे तो देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, और ये डिवाइड अर्थमेटिक एक्सेप्शंस एरर था। एक मिनट, उस एरर्स को भी जरा हम क्या कहते हैं, रन करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये ई तो अब रहा नहीं, अब यहाँ पे E1 मैंने लिख दिया। लुक, वेरी इंटरेस्टिंग। जब तक हम उसको एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखो यहाँ पे इस एक्सेप्शन का नाम क्या है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। लेट मी कॉपी, लेट मी कॉपी। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था एक्चुअली? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब अर्थमेटिक एक्सेप्शंस क्लास कहाँ पे है? java.lang के अंदर। एंड java.lang जो है, ये डिफॉल्ट पैकेज होता है, इसलिए हमको उसको इंपोर्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, why we have one try followed by 2 catches? Very clear. This catch is to handle arithmetic exceptions error, and the second catch is to handle input mismatch error. यहाँ पे हम जरा मैसेज भी बदल दिए। अर्थमेटिक एरर, एक ऐसे ही हमारा कुछ भी मैसेज दिखने के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इनपुट एरर लिख देते हैं। नाउ इज दैट क्लियर कि why one try should follow many catches? मैंने आपको एक रियल एग्जांपल बताया ना, कि आग लग गई, कैसे लगी? Is it due to electrical short circuit or is it due to gas leakage? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के लिए जो काम है दिस कोड, गैस लीकेज के लिए जो काम है वो दिस कोड। तो रियल प्रोग्रामर्स जो होंगे, एक्चुअल टास्क, ये तो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले हो रही है, मैसेज डिस्प्ले होना ही तो रियल टास्क नहीं होगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, मैसेज डिस्प्ले करना ही तो रियल टास्क नहीं होगी माय डियर। तो इन दैट सिचुएशंस हमें जब तक सेपरेट से अलग अलग कैच नहीं लिखेंगे, तब तक तो नहीं पॉसिबल होगा। मैं यहाँ इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इनपुट एरर मैसेज आ रहा है ना, सेकेंड कैच गेट्स एग्जीक्यूटेड। इज दैट क्लियर? अब अगर फिर से रन करें, फिर से रन करता हूं,
डिवाइड एरर करता हूं, द फर्स्ट कैच गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब मान लो किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि ये पर्टिकुलर एरर के लिए तो क्लास का नाम होना पता होना चाहिए। इफ आई डू नॉट रिमेम्बर, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक ही कैच का यूज करेंगे, दैट इज, और उस कैच में हमारा ये क्लास कौन सा होगा, एक्सेप्शंस होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि स्लाइड में हम लोग देख चुके थे कि एक्सेप्शन इज द टॉप मोस्ट क्लास ऑफ एवरी एरर क्लासेस। क्लियर हो गई? तो मैं 2 कोड दे दूंगा इसमें, आप चिंता मत करो, मैं उस फाइल में शेयर कर दूंगा। एक क्लास में ओनली 1 कैच का यूज हुआ होगा एंड सेकेंड फाइल में अलग अलग कैचेस का यूज हुआ होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि इस ट्राई को गौर से देखो, इस पूरे ट्राई में जितने भी काम हो रहे हैं, कोई भी मिस्टेक होगा तो 2 ही एरर्स होगा। इस लाइन पे भी इनपुट एरर ही है, इस लाइन पे भी इनपुट एरर ही है। जिस लाइन पे एरर होगा वहां से ही हमारा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस को रोक दिया जाएगा। अगर फर्स्ट लाइन में इनपुट एरर हो गई, इट गेट्स स्टॉप्ड, सेकेंड इनपुट मांग भी नहीं रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम दोनों लाइन के लिए अलग अलग ये करें, तो अलग अलग ट्राई कैच लिखेंगे। देयर कैन बी मेनी ट्राई कैच एंड फाइनली ग्रुप्स। It's not that there will be only one try. Now is this clear? Why we have 2 catch? ये कॉन्सेप्ट समझ में आई? Every catch, Yes, sir. हर कैच अलग अलग एरर को रिप्रेजेंट करेगा और हर एरर किस टाइप का होगा ये हमको याद रखना होगा, मालूम करना होगा। और अगर हमको नहीं पता है तो उस केस में क्या यूज करेंगे, एक्सेप्शन। उस केस में क्या यूज होगा, एक्सेप्शंस यूज होगा। हम एक यहाँ पे कमेंट बना के लिख भी देते हैं, उस केस में यूज क्या होगा, एक्सेप्शंस यूज होगा। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अब अगर हमको नहीं पता हो तब ये कैच एक्सेप्शंस हो गया, तो it is capable of receiving every type of object. Why? Because exception is the topmost class of all the exceptions classes. Exceptions class is the parent class of all the exceptions class. देख लो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की कॉन्सेप्ट यूज हो रही है। अब अगर हमको पर्टिकुलर पता है तो we should write this kind of thing. This is the way of writing Java program. अब यहाँ पे प्रश्न ये है, इंपॉर्टेंट बात, कि हम लोग जब इस प्रोग्राम को देखें, look at this, यहाँ पे without exceptions, इसमें तो कोई ट्राई कैच नहीं है। Do we, अब नाउ हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, is there any compilation error? No, sir. तो लेकिन अब तो ये जान चुके हो कि जब ये प्रोग्राम रन करेगी तो ये 2 टाइप का एरर जनरेट कर सकता है, मतलब एक्सेप्शन। अब एरर मन नहीं बोलेंगे, एरर्स नहीं बोलेंगे, उसको हम एक्सेप्शंस बोलेंगे। तो यू हैव लर्न, एक तो हो गया इनपुट मिसमैच और दूसरा अर्थमेटिक एक्सेप्शंस। लेकिन कंपाइलर डज नॉट डिटेक्ट ऑल दिस काइंड ऑफ एरर which might get generated at runtime, और ये सारे एक्सेप्शंस कहलाते हैं, और ये सारे एक्सेप्शंस आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन। कौन सा हो गया, अनचेक्ड एक्सेप्शंस, मतलब कंपाइलर इग्नोर्स। इट इज अप टू यू, अगर आप जानते हो हैंडल करो, नहीं जानते हो मत करो, इट इज अप टू यू। लेकिन अदर कैटेगरी के भी जो एक्सेप्शंस आएंगे वो रन टाइम पे ही आपको वो एरर्स को हैंडल करना होगा विद इन द प्रोग्राम, वो आपको हैंडल करना होगा विद इन द प्रोग्राम।
ये तो हम एक सैंपल के तौर पे हमने दे दिया है कि लुक हाउ exceptions gets generated into this program. अगर जीरो इनपुट हुई तब तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस कौन सा हुआ गाइस? द एक्सेप्शंस which cannot be rectified at compilation time. Compiler neglects. Compiler will not flag out to us. लेकिन अगर एक्सेप्शन चेक्ड कैटेगरी की होगी तो कंपाइलर विल टेल अस दिस लाइन जनरेट्स एक्सेप्शन दैट मस्ट बी हैंडल्ड बाय योर प्रोग्राम. हम उसको भी एक एग्जांपल से देख सकते हैं. देयर आर वेरियस वे ऑफ डूइंग इनपुट्स. हम देख चुके हैं चेक्ड एक्सेप्शंस में कौन कौन से हैं. आईओ एक्सेप्शंस हैं. अगर आईओ एक्सेप्शंस की कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर यूज करने की कोशिश करें, अब जैसे हम एक लाइन लिखेंगे, मे नॉट बी इनटू दिस, या लेट मी ट्राई इफ आई रिमेम्बर. मैं इस सारे को कमेंट कर देता हूं. लुक व्हाट आई एम डूइंग. आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ buffer reader object I am creating. Buffer reader a class. This is another way of doing inputs. I don't know whether it works or not. Let me see. Now, buffer reader is a library class. Now, where it is? Buffer, अभी हम अगर इसको compile करेंगे तो इसमें तो use errors आएंगे. Let's see what error I am getting. Here you can see. Hello guys, you can see. इसमें दे रहा है कि cannot find symbol. ये buffer reader symbol ही नहीं मिल रही है. तो buffer reader symbol कहाँ है ये हम जानते हैं. जैसे आपको C++ लैंग्वेज में हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट है, तो जावा में भी आपका लाइब्रेरी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, java.io.bufferreader. अब जैसे हम यहाँ पे ये लिख देंगे बफर रीडर, ये एरर खत्म हो जाएगी. अब लेट्स सी व्हाट एरर आई एम गेटिंग. अब ये इनपुट स्ट्रीम, अब अगला एरर यहाँ पे चला गया. इनपुट स्ट्रीम, STREAM, इनपुट स्ट्रीम. इनपुट स्ट्रीम भी मेरे समझ से यहीं पे है. इनपुट स्ट्रीम, let's see if everything is compatible, then there is no problem. Input stream is abstract class, तो जिसकी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती है, यहाँ पे लिख रहा है ना, input stream is an abstract class which cannot be instantiated. तो abstract class का क्या मतलब होता है? A class whose instantiation is not possible. तो यहाँ पे बफर रीडर को कोई और भी ये चाहिए. ये इनपुट स्ट्रीम रीडर है मेरे ख्याल से. इनपुट स्ट्रीम रीडर. प्रोसेस इज कंप्लीट. तो सो दिस इज अनदर वे ऑफ इनपुटिंग. मैं यहाँ पे लिख देता हूं अनदर वे ऑफ इनपुटिंग. हम 3-4 फाइल सेपरेट कर देंगे. मैं लिख भी दूंगा चेक्ड एक्सेप्शंस का एग्जांपल, अनचेक्ड एक्सेप्शंस का एग्जांपल, और मैं क्लास आज बाय 8 o'clock खत्म करके थोड़ी सी 10 to आधे घंटे लगेंगे, एंड मैं उसको अलग अलग फाइल व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं, बिकॉज ये टॉपिक सारे के लिए नए हैं. अब लोग अब कैसे इनपुट हो, अनदर वे ऑफ इनपुटिंग. अभी आपको एग्जांपल मैं जो दिखाने जा रहा हूं चेक्ड एक्सेप्शंस. तो हम एक मैसेज यहाँ पे दे दिए, इंटर फर्स्ट नंबर. लुक एट दिस. नाउ
BR has got, buffer reader has got a functions called readline, read line. Read line की spelling गलत हो गई है, capital L, read line, and this line returns a string. कुछ भी हम एक SS रिटर्न क्रिएट करके डेटा, चाहे इनपुट डेटा आईडी हम बना लिए, एक इनपुट डेटा, चाहे कुछ भी डाटा एज अ स्ट्रिंग, डेटा स्ट्रिंग. अब लेट मी कंपाइल. अब थोड़ा सा एक मिनट, दिस इज समथिंग डिफरेंट एरर. सर system.out. में s वो तो सिस्टम का एस एरर हो गया. ओ वेरी नाइस, यू आर वाचिंग इट केयरफुली, गुड. अब यहाँ पे देखो गौर से, ये काइंड ऑफ एरर मैसेज व्हाट वी गॉट नाउ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जरा इस लाइन को पढ़ो. Unreported exceptions, IO exceptions must be caught or declared to be thrown. Can you read this line? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. एरर जो दिख रहा है नीचे, प्लीज ट्राई टू रीड इट. इसकी फॉन्ट साइज तो बढ़ा नहीं पा रहा हूं, रीड इट. ये दिख रहा है एरर. yes sir. Guys, ये एरर जो है, यही बिकॉज ये जो लाइन हमने अभी लिखा है, ये लाइन मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दे रहा हूं. ये जो लाइन मैंने लिखा है रीड लाइन, ये रीड लाइन की वजह से है. बता रहा है कि ये लाइन IO एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, जो रिपोर्ट कर रहा है, और वो मैंने अपने प्रोग्राम में हैंडल नहीं किया है. तो ये IO एक्सेप्शन जो है वो हमारा चेक्ड एक्सेप्शंस के कैटेगरी का है. मतलब क्या, कंपाइलर खुद ही तुमको फोर्स कर रहा है कि प्लीज राइट डाउन दीज लाइंस इनसाइड ट्राई. ट्राई को लिखना मस्ट है. ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले पता चल रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस. Try followed by catch. Try followed by catch. अगर हमको कुछ भी नहीं पता है तो हम यहाँ एक्सेप्शंस लिखेंगे, लेकिन यहाँ मालूम हो चुका है. लुक एट दिस लाइन, IO exceptions. IO exception, IOEXCEPTION. IO exceptions कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, E3, और यहाँ पे अब देखो, अब जैसे ही मैंने ये लाइन लिख दिया, नाउ हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो गया. नहीं, अब यहाँ पे IO एक्सेप्शन सिंबल उसको नहीं मिलेंगे. अब IO एक्सेप्शन एरर है कहाँ? तो मेरे ख्याल से IO एक्सेप्शन एरर क्लास जो है वो भी वही होगा, जावा डॉट IO एक्सेप्शन. कंपाइल करते हैं, एरर फ्री है. तो अब समझ में बात आई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन. कि कंपाइलेशन टाइम पे ही दैट एरर इज इंडिकेटेड, दैट एरर इज डिटेक्टेड, एंड दैट एरर मस्ट बी कॉट और थ्रोन. ये कह रहा है कि कैच करो या थ्रो करो. ये हम लोगों ने कैच किया है, लेकिन इसको थ्रो भी कर दिया जा सकता है. अब थ्रो का एग्जांपल्स क्या हुआ? अब जैसे मान लो, अब इस प्रोग्राम को हम रन भी करते हैं तो उसमें तो कुछ है नहीं, इनपुट हो रही है और इनपुट लेके डेटा स्ट्रिंग के पास आ रहा है. तो चलो डेटा स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल्स है उसके द्वारा हम एक आउटपुट करके बस इनपुट आउटपुट देख लेते हैं. Watch out very carefully. Some of you are very serious. Okay, now let me compile and execute. The best what I can do is that all these are the topics. अब यहाँ पे तो input first number,
अभी तो हम जस्ट एज ए स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो या 1 2 3 WX जो भी मान है, देख लो, तो जो हमने इनपुट किया द सेम थिंग इज बीइंग आउटपुटेड। अभी तो उस नंबर का कन्वर्सन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर नंबर का कन्वर्सन करेंगे तो कैसे करना होगा? if you enter a number as a string, then अगर उस नंबर को हमको इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? Can anyone tell me? Integer dot parsing. Good. तो ये integer dot parsing जो आपने कहा, what is integer? इसे Wrapper class. Wrapper class. ये आप सीख गए हैं, so I'm skipping those lines. अब ये बात समझ में आई कि डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होगा? जैसे ये जो लाइन है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शंस। इसमें कंपाइलेशन टाइम पे दैट एक कैटेगरी में अनचेक्ड एक्सेप्शंस में, जबकि चेक्ड एक्सेप्शंस में डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आप उसको कैच करो और नहीं तो थ्रो कर दो, ऐसा भी। अब जैसे मान लो फिर से हम इसको कमेंट लाइन कर देते हैं, डिलीट कुछ, और मैं हर चीजों के लिए जो भी चेंजेस आएगी उसके लिए फाइल 1 2 3 4 करके बना देता हूं एंड उसको आज पोस्ट कर दूंगा। आज हम लोग का कौन सा दिन है? डे 4। इज इट आवर 4th डे? Yes, sir. Okay. तो जो भी डे होगा उसी के डे के नाम से हम उसको बना के पोस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा तरीका ये भी है कि जब हम चीजों को लिखे थे फिर से इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये तो विदाउट ट्राई कैच है ना? तो ये तो हमारा आईओ एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन है ना? ये क्या कर रहे हैं? मस्ट बी कॉट और थ्रोन। या तो हम उसको एक्सेप्शंस हैंडलिंग करें, नहीं तो हम भी थ्रो कर दे। जैसे एग्जाम्पल, आग लग गई, किसी ने हमें सूचना दिया, मैं भी उस सूचना को किसी और को पास ऑन कर दिया, हमने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं किया। हालांकि दिस इज नॉट ए गुड हैबिट, बट देयर आर टू वेज, आइदर यू हैंडल और यू जस्ट थ्रो इट ऑफ। इसलिए यहाँ पे एरर क्या दे रहा है? मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। अब देखो गौर से, ये एरर कौन सा है? विच एरर इज दिस? IO exceptions error. Now IO exceptions error is generated, that is exception is generated inside which function? Inside main function. So either main function should catch those error using try catch syntax or it should throw that error. Error कौन सा है? IO exception. अब लिखना होगा इस तरह से, THROWS throws। तो अब ये फिर एरर खत्म हो जाएगी। लुक एट दिस, एरर गॉट थ्रोन। तो कंपाइलर ही कहा था कि आइदर, ये खास करके किस एक्सेप्शंस में वी विल हैव टू डू? इन द कैटेगरी ऑफ checked exceptions. So the checked exceptions must be caught or declared to be thrown. This is the use of throws keyword. तो throws keyword के द्वारा हमें इसको throw कर देना होगा। throws मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कंपाइलर को, ये हमारा क्या नाम है, मेन फंक्शंस, that IO exception is being thrown. That means this function throws IO exceptions. अब ये कंपाइलर देख रही है कि ठीक है, ये लाइन तो IO exceptions एरर जनरेट कर रहे हैं, बट हियर यूजर जो है को बहुत, यूजर के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यूजर भी उस एरर को क्या कर रहा है? थ्रो कर दे रहा है। आइदर आपको थ्रो कर देना है यूजिंग थ्रोज, अदरवाइज आपको कैच करना है। तो कैच करना इज बेटर सॉल्यूशन। थ्रोज में तो कुछ नहीं पता चला, अगर हम प्रोग्राम भी रन किए जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये फिर मेरा नॉर्मल एरर बस खत्म हो गया, मेरा ये नॉर्मल फ्लो कभी भी नहीं काम करेगा। अब जैसे मान लो इसको जब ट्रांसलेट करते हैं,
जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे num assigns integer integer dot parseInt integer dot parseInt data string. ओके अब देखो यहाँ पे एरर्स तो खत्म हो गए. लेट मी रन इट. अब मान लो मैंने गलत डेटा दिया. अब देखो कितना सारा आ गया. अब एक और नए एक्सेप्शंस आपको दिख गया. कौन सा है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस. विच लाइन गॉट जनरेटेड? आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन होगा. गौर से देखिए, ये जो दिख रहा है ना विदाउट, ये हमारा फाइल नेम है. फाइल नेम का लाइन नंबर 47. ये अदर लाइन को आप देखेंगे तो जावा की लाइब्रेरी के अंदर की चीजें हैं. हम इसको ठीक से सर्च करेंगे देन हमारे प्रोग्राम का लाइन दिख रहा है 47 नंबर लाइन. तो हम अब जाएंगे तो 47th नंबर लाइन को देख रहा है. ये 47 नंबर लाइन हमारा एरर जनरेट कर रहा है. तो इस एरर को अब देखो गौर से, ये लाइन एरर तो जरूर जनरेट कर रहा है, बट क्या ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम हमने क्या एरर हमें ये मिला था? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस नहीं तो यहाँ पे एरर देता. द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस मस्ट बी कॉट और थ्रोन. क्या ऐसा एरर मैसेज आया? कंपाइलिंग एरर मैसेज? आंसर है नो. दैट मींस नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कौन सा? चेक्ड या अनचेक्ड? Unchecked. गुड. अब तो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए. नाइस, you learned. So it comes under the category of unchecked exception. अब बताओ एज ए प्रोग्रामर बेटर कौन सा होगा, कैच करना या कैच नहीं करना? क्योंकि अब ये देखो प्रोग्राम ओवर जो लाइन है ये डिस्प्ले नहीं होगा जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे. नहीं ना डिस्प्ले हुआ. तो हमारा जो डिजायरेबल था नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम शुड बी मेंटेन्ड फ्रॉम स्टार्ट टिल स्टॉप. क्या ऐसा हो पाया? आंसर है नो. सो व्हाट डू यू फील, वेदर द एक्सेप्शन शुड बी कॉट और थ्रोन? कौन सा अच्छा है? थ्रोन तो हो गया जस्ट यूर टेम्पररी सॉल्यूशन की. यार नेग्लेक्ट करो. मैंने कहा एरर है, तुमने भी सोचा रे जाने दो इस एरर को, क्या करना, हटाओ. तो यू नेग्लेक्टेड इट. बेटर अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा? दिस शुड बी हैंडल्ड यूजिंग ट्राई कैच. अब अगर किसी भी टाइप की कंफ्यूजन एरर है तो बताएं. एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी डू यू वांट टू हैव? इज इट क्लियर? चेक्ड एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सेप्शंस. हेलो गाइस, टेल मी. ये रिस्पॉन्ड आना चाहिए जब के. तुम लोग का रिस्पॉन्स बहुत, कुछ लोग तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड रिस्पॉन्स आनी चाहिए. आर यू गेटिंग द थिंग कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. किसी भी फ्रेंड्स, किसी को भी किसी भी टाइप की क्वेरीज? Now what do you want from me today? I think some issues are there. So what I had decided कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है डे 1 तो हमारा इंट्रोडक्शन था, कुछ हम लोगों ने किया ही नहीं था, जस्ट वी हैड टॉक. तो एक्चुअली हमारी जो पीपीटी स्लाइड्स है और जो हमारा क्या है जो जावा कोड है रिलेटेड टू दैट स्लाइड दैट पर्टिकुलर डेज क्लास, उन सारे को डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 के नाम से ही सेव करके हम उसको व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उसी ग्रुप पे हम उसको अपलोड कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं. ओके, एंड यू मे डाउनलोड डे 2 डे 3 एंड जो आज हमारा है डे 4 जो भी है. और आज का जो भी हमारा टॉपिक है चेक्ड एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल, अनचेक्ड एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल. चेक्ड एक्सेप्शंस को हमें आइदर चेक्ड एक्सेप्शंस मस्ट बी कॉट और थ्रोन, ये डिफरेंस है. चेक्ड एक्सेप्शंस में क्या हमने देखा? दे मस्ट बी कॉट और थ्रोन. दैट मींस वेल कंपाइलर
tells you these are the very important error, you must catch them. इसलिए उसने सिग्नल किया कि they must be caught or thrown. So thrown is temporary solutions, but best solution is ये क्या हम बोलते हैं must be caught. तो मेन फाइल होगा विदाउट एक्सेप्शंस हैंडलिंग एंड विथ एक्सेप्शंस हैंडलिंग. तो उसी ढंग के मिलता जुलता हम फाइल नेम, मीनिंगफुल फाइल नेम से हम आपको फाइल को डाल के एडिट करके, हमें थोड़े से टाइम अभी लगेंगे, हम उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारा एक्सेप्शंस हैंडलिंग टॉपिक आज एंड होता है. कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, कस्टम एक्सेप्शंस एंड कुछ और चीजें जो है विच इज रिलेटेड टू कोर जावा लैंग्वेज, वो हम लोग अगले स्लाइड्स में नेक्स्ट डे जो हमारा क्लास होगा टुमारो, उसमें हम लोग देखते हैं. तो अब होपफुली अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो हम लोग के जावा लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक काफी अच्छा हो जाएगा. देयर आफ्टर हम लोग MVC आर्किटेक्चर एंड जो हम लोग का जो स्प्रिंग बूट जो माइक्रो सर्विसेज क्रिएट करना है, जो हम लोग का एग्जैक्ट एम था, उसके फाउंडेशन को, कुछ चीजों को क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न स्लोली. दे आर इंटरेस्टिंग एंड फुल्ली प्रैक्टिकल थिंग्स. इसमें हम कुछ थ्योरी नहीं कर सकते हैं. ये तो सारा थ्योरी जितना हो गया, you all belong to 4th semester students, so आपका जो जावा का जो एग्जाम होगा उसमें एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू एक्सेप्शंस हैंडलिंग. हाउ डू यू इम्प्लीमेंट देम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, व्हाट इज द क्लास हायरार्की ऑफ एक्सेप्शंस एंड सो ऑन. तो आज बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा एंड ये भी हम लोग देखे कि विदाउट इनहेरिटेंस क्या जावा में कोई भी प्रोग्राम बन सकती है. व्हाट डू यू से, यस या नो? No, sir. Why? So because for every class there is a base class, that is object. Very good, Nishant. Very nice. So automatically it happens. So जब ध्यान से उतर जाए तो वो हिंदी वाली जो गाना है, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो. तो यहाँ पे अगर किसी क्लास को कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो वो पेरेंट क्लास कौन सा हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है. एंड अगले दिन उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, कोशिश करेंगे. ऑब्जेक्ट क्लास में जो मेथड्स है, मैकेनिज्म है, जो मेथड्स है, उसमें एक मेथड तो हमने बता ही दिया, दैट मेथड इज टू स्ट्रिंग. एंड बहुत सारे उसके ऐसे मेथड्स हैं जो मल्टी थ्रेडिंग, दैट इज मल्टीटास्किंग, जावा का वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो है, कॉन्सेप्ट है, दैट इज थ्रेड मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग, उसको हैंडल करने के लिए है. तो मे नॉट बी टुमारो बट मे बी आफ्टर 2-3 days. आज हमारा कौन सा दिन हो गया? आई थिंक कौन सा दिन है आज? मंडे, ट्यूसडे है ना? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. हाँ, इस वीक तो हम लोग जावा को लेंगे ताकि थ्रेड वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उन चीजों को कर सके. तो 2-3 दिन क्लास और भी हम करते हैं. और ये फाउंडेशंस हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है हमारा एडवांस जावा में यूज होगा. जो भी स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, या जो भी डेटाबेस प्रोग्रामिंग, सर्वलेट, जो भी द एडवांस कॉन्सेप्ट, द होल, हम लोग सुनते हैं ना J2E पैकेज, J2E, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन जो है, तो इसलिए उस पैकेज के अंदर सारी चीजें आ जाती है. द फर्स्ट थिंग इज कोर जावा लैंग्वेज. और जितना हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जितने हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो सारे ये होंगे. तो डियर गाइस, मैं आज सारे स्लाइड्स को भी शेयर कर देता हूँ आपके सारे फाइल्स को. और हमारा फाइल का जो नेमिंग करने का जो तरीका होगा, डे 2 डे 3 करके ही करेंगे. मतलब डे वर्ड से ही पता चल जाएगा कि कौन सा दिन का है. और सेम डे में अगर एक से ज्यादा फाइल होगा तो वहाँ पे और भी कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होंगे. आपको नेम देख के ही पता चल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं. एंड मेरा थोड़ा सा सजेशंस है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग करो. एंड इट इज, या कुछ आप अच्छा क्रिएशंस भी करते हो तो आप उसको ग्रुप में शेयर करो. ठीक है ना? मैं अपना मेल आईडी भी दे देता हूँ. अगर वो ज्यादा बड़ी फाइल है तो आप हमारे मेल पे डाल दीजिए.
और इफ एनी क्वेरीज है तो आप दिखाइए। एट द एंड हम चाहेंगे कि आप लोग एक प्रोजेक्ट छोटा सा बना के और उसमें पोस्ट करें, खैर जब हम लोग बूट वगैरह कर लेंगे तब। और इस तरह से एनी क्वेरीज, एनी, मंजीत, विनय, हर्षित, anyone guys? Do you people have any kind of queries, any doubts, anything you can ask? Can you hear me? No doubts. No doubt. ये some checked exceptions and unchecked exceptions. तो अब जो भी आप प्रोग्राम बनाएं, प्लीज आप फॉलो करें, एक्सेप्शन हैंडलिंग को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको काम करना ही नहीं है, एटलीस्ट इनपुट लेवल पे हम लोग देख ही रहे हैं। अगर रैपर क्लासेस वगैरह यूज करके कन्वर्ट करना है, और जैसे बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शंस जो भी क्लासेस है वो चेक्ड एक्सेप्शन से जनरेट करते हैं। अब एरे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम, तो अगर की साइज एरर इश्यूज आती है तो वहां पे कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हो, व्हाट इज दैट नेम, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस, रिमेंबर। तो अगर अच्छी प्रोग्रामिंग, आप अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर आपके प्रोग्राम में एरे यूज हुई है तो निश्चित तौर पे आपको इस एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहिए। कंपाइलर तो आपको नहीं बताएगी क्योंकि ये कौन सा कैटेगरी का एक्सेप्शंस है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस। स्लाइड में हमने हायरार्की दिखा दी थी। इज इट ओके? तो अब अगर आप डाउट नहीं है तो वी विल here and let me categorize all those files today's sessions जो हम लोगों ने देखा है, और उसको बना के हम WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देते हैं। एज वेल एज प्रीवियस दिन का भी जितना होगा वो भी मैं आज कर देता हूँ। अभी सर्टेन इश्यूज है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से that meet link is not visible to you all people. So anyway, quick solution is हम उसको WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देते हैं, आप डाउनलोड कर लेंगे। Will that be fine? Yes, sir. तो spare me some time by 8:30 आप उसको देखेंगे, आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, सारे एग्जांपल्स को एग्जीक्यूट करके आप देख लेंगे। Till then we will meet tomorrow by 6:30. Till then, good night guys. And excuse me, I'm just preparing those contents, and within half an hour I shall share them on your WhatsApp group. Okay then, good night. We will stop our today's session. Bye bye, take care and do Thank you, sir. hard work. उसको regularly implement करें, things will be very interesting and simple. Okay, good night.